afternoon, hello and welcome to Mediculum Science classes. As all of you know, in the 4 or 5 sections of the video, we get full information about the types of chemical reaction. But today, we need to see the chemical reaction through the different angle. In the 4th section, we understood about the 2 reactant combined, then combination, 1 reactant forms the different product, decomposition reaction, displacement is obviously one metal displace some other metal, and double displacement both exchange each other. But now today we need to see the reaction that is called reduction. Firstly we need to understand about the oxidation and second one is reduction. So word suggests oxidation means oxygen. Reduction is again related with the hydrogen or you may call oxygen. So oxidation and reduction is the type of reaction but only in respect of 2 elements, hydrogen and oxygen. Just think, if some reactant add oxygen, then it is considered as oxidation. If some metal lose their oxygen, some compound lose their oxygen, then it is reduction. Oxidation means gaining of oxygen and reduction means losing of oxygen. But if you talk about the oxygen, but if you see the oxidation or reduction in respect of hydrogen, then losing of hydrogen is considered as reduction. And just see. You may be confused in the first time. Oxidation means gaining of oxygen, right? Plus, and hydrogen, losing of hydrogen is also oxidation. Again, if you see oxygen, if lose the oxygen, then it is considered as reduction, and gaining of hydrogen is known as reduction again. So don't worry if you feel any confusion, then don't worry. I am just trying to say gaining of oxygen is called oxidation. Just see with that particular example. Copper is here. Okay, copper combines with oxygen and forms copper oxide. That is black color substance. Okay, just see copper here. Copper gain oxygen, right? So that is considered as oxidation process. And if you talk about the copper oxide, hydrogen is passing over the copper oxide, then it forms copper plus water. It means here oxygen lose. It means copper oxide lose their oxygen. It means reduction. बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो फिर से समझते हैं. देखो क्या हुआ. यहाँ पर यदि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कहीं से, तो वो रिडक्शन होगा. कोई भी ऑक्सीजन गेन करता हो रिएक्टेंट, ध्यान रखना रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में मत चले जाना. कोई भी रिएक्टेंट यदि ऑक्सीजन को गेन कर ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन गेन कर लिया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. और यदि लूज कर दे रहा है ऑक्सीजन को, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था बट रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन. अब सोचो कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, राइट? देखो यहाँ पे गेन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. आप समझो इस बात को, बहुत इजी है कि यदि कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन. बहुत सिंपल है. आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल से. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर देन फॉर्म C6H12O6 प्लस O2. अभी आप देखो ये 6 चैप्टर में फिर से पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में, बट इसको समझो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है,
कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आके ऐड हो जा रहा है। जहां पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा, दोनों ही केसेस में ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ देखो वाटर क्या हो रहा है, वाटर अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन में बदल जा रहा है, तो यहाँ रिमूव कर रहा है, तो फिर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, बाय लूजिंग हाइड्रोजन। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आप चीजों को समझ रहे थे कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन लूज हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन यदि ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन यदि लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्न इनटू ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन, बाय रिडक्शन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, एंड वाटर इज टर्न इनटू ऑक्सीजन बाय लूजिंग देयर हाइड्रोजन, सो थ्रू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि X इज अ सब्सटेंस, यहाँ पे पूछेगा X इज अ सब्सटेंस react with Y and forms a Z color, Z substance which is black in color, black in color, black color oxide, and if you pass hydrogen gas over that black substance, they forms into X and we regain X। तो वो कंपाउंड कौन सा है ये बताने के लिए यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज को ना, या कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना उसका प्रॉपर्टीज को ना बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ पे कॉपर हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड में बदल जा रहा है, और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। समझ में आ रही है? फिर देखो इस ब्लैक कलर के सब्सटेंस पर से यदि हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, अभी देखो ये हाइड्रोजन गैस ना दूसरा जगह से भी ले सकता है, लाइक मेटल का एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। वही गैस को यहाँ यूज कर लिए तो फिर क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और वाटर में बदल गया, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक तरह का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। देखो बात को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन लूज करेगा कोई भी रिएक्टेंट, और कोई भी ऑक्सीजन जब लूज करेगा तो कोई तो रिसीव करेगा। तो जिसने ऑक्सीजन को रिसीव किया वो ऑक्सीडेशन, जिसने लूज कर दिया वो रिडक्शन। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, और जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। बातें समझ में आ रही है? इसलिए इन दोनों टर्म का छोटा छोटा एक वर्ड ले लिया गया और इसको बना दिया गया रीडॉक्स। रीडॉक्स, री लिया गया रिडक्शन से, रीड लिया गया रिडक्शन से, और ऑक्स लिया गया ऑक्सीडेशन से, तो ये दोनों रिडॉक्स कहलाता है। अभी इसका कॉपर का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म होना, और फिर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर वायर हीटेड, then it turns into black color because it is a copper oxide, and what happen when hydrogen gas pass over that copper black color copper wire, then copper wire get their black their previous color, वो जो black appearance था वो disappear हो जाएगा क्योंकि ऑक्साइड हट चुका है, उसका ऑक्साइड का लेयर ज्यादा ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। सो आई होप इज इट क्लियर। तो अभी हमने सीखा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? So today we learn about the redox nature of the substance. अब देखो एक बात प्रैक्टिकल आपसे करना चाहते हैं। इस दुनिया में ना जितना भी रिएक्शन होगा उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बहुत एक्सेप्शंस को ढूंढ लो तो बात अलग है, जैसे Na और Cl, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ निश्चित रूप से जुड़ा हुआ रहता ही है।
या तो निकल रहा होगा हाइड्रोजन या जुड़ रहा होगा ऑक्सीजन, या निकल रहा होगा ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा हाइड्रोजन, ऐसा कुछ होगा ही। इसलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन में ना, रिएक्शन में ना, रिडॉक्स नेचर को देखा जाता है कि ये क्या किस तरीके का है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन अपने आप में रिडॉक्स नेचर का होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, बिकॉज केमिस्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस आ ही जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एलिमेंट कंपाउंड का अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो आई होप इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिडक्शन कहाँ देख सकते हैं और ऑक्सीडेशन कहाँ देखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन आप देखोगे कहाँ पे, मेटल का जितना भी ऑक्साइड बनाता है वहाँ मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं। अरे यार बहुत इजी, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि Mg है प्लस O2, आपने क्या किया था, MgO बनाया, व्हाइट पाउडर, याद आया, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है, समझ रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलो तो हमको समझ में आता है कि जितना भी, अब देखो कंबस्टन का बात कर लो, कंबस्टन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस को जलाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन है। कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन में भी आप पढ़े थे। आपके किचन में मीथेन गैस जलाया, आपके किचन में LPG जलाया जाता है, ये सब का सब क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो है। उसके बाद जितना भी रस्टिंग है आयरन के साथ में, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन वहां पे ऐड हो रहा है। तो ये सब चीजें, अब आपको रिडक्शन कहाँ देखने मिलेगा, तो रिडक्शन देखने मिलेगा आपको मैक्स टू मैक्स टाइम, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड्स के ऊपर जब पास करवाते हैं तब, या फिर मेटल नॉन मेटल में एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल जो था वहां पे देखने मिलेगा। ये सब चीजें कॉमन है जो आपके आसपास ना चेंजेस जो हो रहा है उसमें आप देखेंगे। तो आई होप कि आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ना प्रैक्टिकली आप कनेक्ट कर पाए। इसके बाद हम लोग का टॉपिक जो होगा ना कोरेजन और रेंसिडिटी, उसमें और कुछ नहीं है। कोरेजन मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, और वो मेटल कौन कौन सा है पता है, वो मेटल बड़ा सिंपल है, आयरन है, कॉपर है, और फिर सिल्वर है, और थोड़ा बहुत जिंक या फिर और कोई मेटल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ना सिर्फ रिवाइज करेंगे कोरेजन और रेंसिडिटी को, उसके साथ में ओवरऑल कॉन्सेप्ट को एक बार रिव्यू कर लेंगे। थैंक यू अलॉट।